Okay, so yes, in the last class I was telling you about the toxoids. So toxoids, I told you that it is basically the inactivated toxin which are produced, which is of a particular bacteria, and they can stimulate the production of respective antibodies. For example, हम इसको inactivated form में इस टॉक्सिन को निकाल लेते हैं और फिर इस इनएक्टिवेटेड टॉक्सिन को हम लोग इंजेक्ट करते हैं पर्टिकुलर पर्सन में या पर्टिकुलर एनिमल में, तो वो inactivated toxin क्या करेगा? This inactivated toxin, what will it do? It will stimulate production of antibodies. Stimulate production of क्लियर. तो डिप्थीरिया और टेटनस में हम मोस्टली टॉक्सॉइड्स का यूज करते हैं. क्लियर. किसी को अगर डिप्थीरिया हुआ है या टेटनस हुआ है तो हम उसके लिए टॉक्सॉइड्स का यूज करते हैं जो एंटीबॉडीज प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं. ओके, एंड दे विल ट्राई टू किल द पर्टिकुलर टाइप ऑफ बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द बॉडी. ओके, तो नेक्स्ट है हमारा सबसे इंपॉर्टेंट जो प्रोसेस है नाइट्रोजन साइकिल, जो बैक्टीरिया हमारी हेल्प कर रहे हैं इन्वायरमेंट को में नाइट्रोजन को फिक्स करने में. ठीक है, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस टेकिंग प्लेस इन द एनवायरमेंट. ओके, सो अब नाइट्रोजन साइकिल जो है या नाइट्रोजन फिक्सेशन जो है ये एक ऐसी प्रोसेस है which is a very special process done by the bacteria. Okay, clear to all of you, and you must have heard about the bacteria called as rhizobium. बहुत ही हिट बैक्टीरिया, बहुत हर क्लास में इसको पढ़ाया जाता है राइजोबियम को. So rhizobium is found living in small nodules of leguminous plants. So basically it is found in small nodules of leguminous plant, जैसे कि बीन्स हो गए, राइट, एंड ऑल ये सारे leguminous plants होते हैं. Okay, so this bacteria, this rhizobium, they take up the free nitrogen from the soil and atmosphere both. तो soil और nitrogen दोनों से free nitrogen लेते हैं और उसको convert कर देते हैं nitrates में, soluble nitrates में. Okay, so what does this rhizobium do? Rhizobium basically take up the, so rhizobium, they take up free nitrogen from air, or you can say atmosphere and soil. Okay, and they convert it to, इसमें convert कर देंगे soluble nitrates में, इसमें convert कर देंगे soluble nitrate में. अब plant इस soluble nitrate को use कर सकते हैं. So these nitrates are used by host plant and they can form proteins from it. Okay, these nitrates can be utilized by plants कुछ दिमाग में आया कि प्रोटीन्स जितनी भी लेगुमिनस प्लांट है जैसे कि पीज, बीन्स, पल्सेस, ये सब में प्रोटीन ज्यादा क्यों होता है? क्योंकि दे टेक अप रिच अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन फ्रॉम द, बेसिकली उनमें राइजोबियम ग्रो कर रहा है एंड दिस राइजोबियम इट टेक अप द good amount of nitrogen from air and soil and convert it to form soluble nitrate, and this soluble nitrate is utilized by plant for producing the protein, and that's why all the leguminous plant they have good amount of proteins in them. तो ये एक बेसिक आइडिया है नाइट्रोजन फिक्सेशन का, इसको कहते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन. तो नाइट्रोजन फिक्सेशन है क्या? द प्रोसेस ऑफ सर्कुलेशन ऑफ नाइट्रोजन between the atmosphere, soil, plants and animals is called as the nitrogen cycle. ओके, तो नाइट्रोजन फिक्सेशन में क्या हो रहा है? नाइट्रोजन साइकिल चल रही है एटमॉस्फेयर, सॉइल, प्लांट्स और एनिमल्स के बीच में. ये घूम रहा है और वापस उसी जगह पर आ जाता है. ओके, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ फ्री नाइट्रोजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, अभी जो प्रोसेस है, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ फ्री नाइट्रोजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर इनटू सॉल्युबल नाइट्रेट्स by the help of microorganism is known as biological nitrogen fixation. Just now I told you this. Okay, the microbes which carry out biological nitrogen fixation are called as biological nitrogen fixers, like rhizobium,
Azotobacter, many more, right? Clostridium. There are different type of bacteria which are nitrogen fixers. I hope this much is clear to all of you. Okay. So now we come on to the whole cycle of nitrogen, nitrogen cycle. So सबसे पहले nitrogen cycle जो मैं आपको बता दूं, that nitrogen cycle can in the previous slide. Okay. So if you see here, the nitrogen fixing bacteria are present here, and this is they are taking up atmospheric nitrogen. क्या ले रहे हैं बेटा? Atmospheric nitrogen. अब ये इस एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फर्स्ट ऑफ ऑल दे विल कन्वर्ट इट टू फॉर्म द अमोनिया. सबसे पहले यहाँ पे N2 अमोनिया फॉर्म करता है, राइट? अब यहाँ पर जो अमोनिया फॉर्म हो रहा है, अमोनिया फॉर्म करने के लिए हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट बैक्टीरिया होता है, दैट इज कॉल्ड एज द अजोटोबैक्टर. तो यहाँ पे कौन सा बैक्टीरिया यूज हो रहा है इस प्रोसेस में? अजोटोबैक्टर. ठीक है. तो अजोटोबैक्टर नाइट्रोजन से अमोनिया या यूरिया बना देगा. ठीक है. फिर ये जो अमोनिया और यूरिया होता है वो कन्वर्ट होगा आपका नाइट्राइट में. क्या बनाएगा ये? नाइट्राइट. और इसमें नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया यूज होंगे. वन इज कॉल्ड एज नाइट्रोसोमोनास. तो नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया क्या होता है? नाइट्रोसोमोनास. तो यहाँ पे नाइट्रोसोमोनास बैक्टीरिया का हम यूज कर रहे हैं. अमोनिया विल कन्वर्ट टू फॉर्म नाइट्राइट विद द हेल्प ऑफ नाइट्रोसोमोनास. And after this nitrite will convert to form nitrate. This nitrate is formed with the help of nitrobacter bacteria. And after nitrate is formed, this nitrate will be utilized by higher plants to form the amino acids. Now, what is amino acid? Amino acids are the small units which later on forms the proteins. Okay. And these proteins are consumed by higher animals. जैसे deers will eat the plants, we will eat the vegetable and fruits from the plant. So like that we can take the proteins which is prepared by plants. Okay. So this is actually a cycle which is starting from atmosphere, going to plant, and then coming back to the animals, and then animals excrete. अब animal हम क्या excrete कर रहे हैं? अमोनिया यूरिया excrete कर रहे हैं. वो फिर से वो अमोनिया और यूरिया वापस इस साइकिल में एंटर कर सकते हैं. ओके. क्लियर. तो ह्यूमंस जो है यूरिया एक्सक्रीट करते हैं, एक्वेटिक एनिमल्स अमोनिया एक्सक्रीट करते हैं, इंसेक्ट्स एंड ऑल लिजर्ड्स, बर्ड्स, ये सब यूरिक एसिड एक्सक्रीट करते हैं. तो इस तरीके से वो सब वापस साइकिल में एंटर कर जाते हैं. क्लियर टू ऑल ऑफ यू. तो यहाँ पर जो नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया है, हम कौन कौन से नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया यूज कर रहे हैं? अजोटोबैक्टर यूज हो रहा है, नाइट्रोसोमोनास एंड नाइट्रोबैक्टर. ओके. ये सारे के सारे जो बैक्टीरिया है वो क्या है? नाइट्रोजन fixers or the nitrifying bacteria. Clear to all of you? Okay. So there are suppose the first process was ammonification. I told you about ammonification. नाइट्रोजन फिक्सेशन जो हो रहा है वो दो तरीके से अजोटोबैक्टर भी कर सकता है, राइजोबियम भी कर सकता है. अजोटोबैक्टर सॉइल में रहता है और राइजोबियम रूट नोड्यूल्स में रहता है लेगुमिनस प्लांट्स के. काम दोनों सेम ही कर रहे हैं. ठीक है. तो ये क्या करते हैं? ये अमोनिफिकेशन के टाइम पे ये क्या करते हैं? नाइट्रोजन से अमोनिया बना देते हैं. ओके. तो यहाँ पे कौन सा बैक्टीरिया यूज हो रहा है? अजोटोबैक्टर, राइजोबियम. ओके. दीज टू बैक्टीरिया कैन बी यूज्ड in this process. Now the second process is the nitrification. नाइट्रिफिकेशन में क्या हो रहा है? नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स बन रहे हैं. नाइट्रिफिकेशन. तो नाइट्रिफिकेशन में जो अमोनिया है यहाँ पे देख रहे हो आप, नाइट्रिफिकेशन में नाइट्रोसोमोनास बैक्टीरिया का यूज हो रहा है और ये नाइट्राइट्स बनाते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे नाइट्राइट्स बनते हैं अमोनिया से. ठीक है. फिर उसके बाद ये अमोनिया से नाइट्राइट्स बन रहे हैं. फिर अमोनिया से नाइट्राइट से क्या बनेंगे? नाइट्रेट्स. ठीक है. सो अमोनिया से नाइट्राइट बनाने के लिए नाइट्रोसोमोनास यूज हो रहा है और नाइट्राइट से नाइट्रेट बनाने के लिए नाइट्रोबैक्टर यूज हो रहा है. ठीक है. क्लियर टू ऑल ऑफ यू. सेकंड प्रोसेस, सेकंड स्टेप सॉरी. थर्ड स्टेप में क्या होता है? जो नाइट्रेट्स हैं वापस नाइट्रोजन में कन्वर्ट हो जाते हैं. नाइट्रेट से वापस व्हेन द नाइट्रोजन इज फॉर्म्ड. ओके. तो ये जो प्रोसेस है इट इज कॉल्ड एज डीनाइट्रिफिकेशन. डीनाइट्रिफिकेशन. वापस जो नाइट्रोजन है ये यहाँ से निकल के सीधा एटमॉस्फेयर में चला जाएगा. तो डीनाइट्रिफिकेशन होता है विद द हेल्प ऑफ अ बैक्टीरिया कॉल्ड एज स्यूडोमोनास. कौन सा बैक्टीरिया है यहाँ पे? स्यूडोमोनास.
तो डीनाइट्रिफाइंग बैक्टीरिया हमारा होता है स्यूडो। गुड इनफ टिल हियर? ओके, नाउ नेक्स्ट इज बायोगैस प्रोडक्शन। तो बैक्टीरिया जो है बायोगैस प्रोडक्शन में भी हेल्प कर रहा है, लाइक वो गैस, बायोगैस, मीथेन प्रोडक्शन। Okay, it is carried out with the help of bacteria using animal feces. You all know that biogas is a fuel which is used for many purposes like street lighting and all. In some में भी हम इसको use करते हैं. Okay, clear to all of you? And the bacteria, other than this, they are used for decomposition also, or you can say decay, and they are also used for they also do a process that is called as putrefaction. ओके, तो डिकम्पोजिशन में क्या होता है या डीके में क्या होता है? कंप्लीट ब्रेकडाउन। ये बैक्टीरिया जो होते हैं वो कंप्लीट ब्रेकडाउन करते हैं ऑर्गेनिक मैटर का। ओके, देयर इज अ कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, और यहाँ कोई स्मेल नहीं आती, एंड देयर इज नो फाउल स्मेल। ओके, प्यूट्रीफैक्शन में क्या होता है? इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन होता है। इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, और यहाँ पर आपको स्मेल मिलेगी विथ फाउल स्मेल, क्योंकि इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन हो रहा है तो फाउल स्मेल विल बी देयर। ओके, तो बेसिकली जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स होते हैं, ये सब प्लांट्स होते हैं जो बिग सिटीज में बनते हैं, तो उसमें सीवेज ट्रीटमेंट आप जो कर रहे हो उसमें बहुत गंदी स्मेल आती है, गैसेस प्रोड्यूस होती है। तो वो जो गैसेस होती हैं उसको हम लोग उन गैसेस को प्यूरिफाई करके, रिफाइन करके उनको हम यूज कर सकते हैं फॉर कुकिंग पर्पसेस, फॉर बेसिकली इंडस्ट्रीज में भी यूज कर सकते हैं। ओके, so like that we can utilize these gases, and these gases are nothing but the biogas. Okay, the सीवेज ट्रीटमेंट से निकलती है। जब आप सीवेज ट्रीटमेंट करते हो तो उस टाइम पे बायोगैस का प्रोडक्शन भी होता है, दैट यू विल सी इन द अदर चैप्टर्स। ओके, सो नेक्स्ट इज हार्मफुल रोल ऑफ बैक्टीरिया। हमारे जो बैक्टीरिया है वो बहुत हार्मफुल भी होते हैं कई बार, क्योंकि ये फूड को स्पॉइल कर देते हैं। तो फूड स्पॉइलेज इज टेकिंग प्लेस विद बाय द बैक्टीरिया, तो it can cause food poisoning when the food is spoiled. Okay, and why there are ways to prevent spoilage? अब spoilage जब होती है तो उससे बहुत सारे बीमारियां भी हो सकती हैं, like for example food poisoning को हम लोग बोलते हैं botulism. Okay, so it is a very serious food poisoning due to a bacteria known as botulinum. तो एक बैक्टीरिया होता है बोटुलिनम, उसकी वजह से ये फूड पॉइजनिंग होती है। सो बोटुलिज्म इज अ वेरी सीवियर फॉर्म ऑफ फूड पॉइजनिंग। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो इससे बचने के लिए हमें क्या करना है? हमें प्रिवेंट करना है फूड को खराब होने से। सो फर्स्ट ऑफ ऑल देयर डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स लाइक ड्राइंग। इन एंशिएंट प्रैक्टिस ऑफ फूड प्रिजर्वेशन दिस मेथोडोलॉजी डिक्रीजेस वाटर एक्टिविटी। हम ड्राई करके चीजों को रख लेते हैं, बॉक्सेस में भर के रख लेते हैं, ठीक है। या तो उसको सन की हेल्प से आप ड्राई कर सकते हो, या विंड से, मतलब जो नॉर्मल हवा, या फिर आप आजकल ड्रायर्स भी आते हैं, उनके अंदर आप डाल के उसको ड्राई कर सकते हो किसी भी चीज को। तो इसको हम लोग फूड डिहाइड्रेटर्स भी बोलते हैं, ठीक है। लाइक ओवंस में भी, हाउस होल्ड ओवंस में भी हम ड्राई कर सकते हैं और उनको स्टोर कर सकते हैं, राइट, फॉर लॉन्ग टाइम। क्लियर? सो डिहाइड्रेशन इज बेसिकली यूज्ड फॉर वेरियस टाइप ऑफ ग्रेन्स लाइक राइस, वीट, क्योंकि वीट को हम सन ड्राई इसीलिए करते हैं ताकि उसको वो खराब ना हो, ठीक है। वीट हो गया, राइस हो गया, ठीक है। उसके अलावा आप वो वेजिटेबल्स को भी ड्राई फॉर्म में रख सकते हो, राइट। एंड मीट, बेसिकली मीट को भी ड्राई फॉर्म में रखा जाता है, दे आर पैक्ड इन द पैकेट्स एंड दे आर फ्रोजन। ओके, आप फ्रोजन फॉर्म में घर पे मीट लाते हो, अगर आप व्हेन यू ऑर्डर द मीट इट कम्स इन अ फ्रोजन फॉर्म। So freezing is another option. Freezing is a method of keeping ready-made food stuff in the cold storage. Like sweet potatoes can be stored in pitch black and unlighted rooms. However, sweet potato preparation needs to be frozen.
तो अदर देन स्वीट पोटैटो यू कैन ऑल्सो फ्रीज दी, जैसे आपने देखा है घर पे